Okay, next question. Red, white, and blue are in partnership. The following is their balance sheet as at 31st December 2018, on which date they dissolve partnership. They share profit in the ratio of 5:3:2, means इनका PSR क्या है? 5:3:2. Okay. Liabilities, amount and assets. In liabilities, partners capital, red, white, and blue. Creditors and red flown. In asset side, premises, plant, debtors, stock. Okay. It was agreed to repay the amount due to the partners as and when the assets were realized. On 1st February 2019, rupees 30,000, means first realization is on 1st February 2019, rupees 30,000. Second realization on 1st April for rupees 73,000, and third realization 1st June, amount 47,000. Prepare a statement showing how the distribution to the partners should be made under the excess capital method. Okay, तो yes, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कौन से दो स्टेटमेंट बनाने होते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट, yes, first statement for excess capital and second statement for distribution of cash. Okay, see, statement of excess capital. 3 partners are there. So 5 column, first column for particulars, second column for first column for steps, second column for particulars, and next 3 column for partners capital. Okay. Then first step is capital balances. Capital balances बैलेंस शीट से मिल जाएगा. रेड का कितना है? 50,000, व्हाइट का 15,000 and blue 45,000. See, capital balance is 50,000, 15,000 and 45,000. इनका PSR क्या है? Profit sharing ratio. Profit sharing ratio क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2. ओके, 5:3:2. रेड का 5, व्हाइट का 3 एंड ब्लू का 2. 5:3:2. The next step is third step. Realization. No, unit capital. Unit capital, which is capital balance divided by PSR. Okay, 50,000 divided by 5. How much? 10,000. 10,000. Yeah. 15,000 divided by 3. 5,000. 5,000. And 45,000 divided by 2,000. 22,500. Then step number 4 is base capital. Base capital, whichever is lower. तो यहाँ पे lowest किसका है? White का 5,000. तो हम लोग लेंगे white का capital as a base capital. ठीक है? How much? 5,000. ठीक है? The next step is proportionate capital. Proportionate capital is equal to base capital into PSR. Okay. 5,000 into 5 कितना हो जाएगा? 25,000. Same here. 5,000 into 3. 15,000. 15,000. Same here. 5,000 into 2.
10. 10,000. Next is step number 6 is excess capital. But 3 partners हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे interim excess capital. Interim excess capital is equal to 50,000 means capital balance minus proportionate capital. Capital balance minus proportionate capital. See, 50,000 minus 25,000. How much? 25,000. Yeah. 15,000 minus 15,000. Nil. Nil. And then 45,000 minus 10,000. 35. 35,000. Yeah. एक cycle हो गया. Then फिर से हम same process. The next step is again PSR, profit sharing ratio. Profit sharing ratio कितना हो जाएगा? रेड का रेशियो है 5, व्हाइट का तो अभी नील हो गया तो डैश, एंड ब्लू का 2, 5:2. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज यूनिट कैपिटल. यूनिट कैपिटल इज इक्वल टू इंटरिम एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय PSR. Step number 6 divided by step number 7. 25,000 divided by 5. 5,000. 5,000. 35,000 divided by 2. 17,500. 500. 500. Step number 9 is base capital. Base capital, whichever is 5,000. lower, lowest unit capital. Okay, lowest unit capital. Lowest unit capital is 5,000. Again, step number 10, proportionate capital. Capital, which is base capital into PSR. 5,000 into 5,000 into 5, 25,000. White का तो नील है. 5,000 into 2, 10,000. Okay. Okay. Step number 10, excess. Step number 11, excess capital. See, 5,000, excess capital, which is interim excess capital. Interim excess capital minus proportionate capital means step number 6 minus step number 10. Okay, step number 6 minus step number 10. Step number 10. Yeah, 25,000 minus 25,000. Nil. 0. ये तो नील था पहले से ही. एंड लास्ट में ब्लू का आ जाएगा 35,000 माइनस 10,000. 25,000. ओके, समझा? Yes, ma'am. तो अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जब पार्टनर्स को पेमेंट की बारी आएगी तो फर्स्ट किसको मिलेगा? Blue. ब्लू. Blue. देन नेक्स्ट ब्लू एंड रेड को, एंड लास्ट में तीनों Red. पार्टनर्स को. तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट फर्स्ट पे टू ब्लू रुपीज 25,000 मीन्स लास्ट वाला लाइन 25,000 ये मिल गया हमें. फर्स्ट पे टू ब्लू रुपीज 25,000. देन सेकेंड पे टू रेड ना, रेड है ना फर्स्ट वाला. यस, रेड एंड ब्लू. देखो एक लाइन ऊपर देखना है. ये रेड का 25,000 था एंड ब्लू का 10,000. तो देन आएगा सेकेंड पे टू रेड एंड ब्लू. रेड एंड ब्लू रुपीज 25 plus 10, how much? 35,000 in their PSR, which is 5:3. Then last is
last pay to all in their PSR, profit sharing ratio. Okay, before going to distribution of cash, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पहले हमें किसको पे करना होगा. हमारे लाइबिलिटीज में कौन कौन से लाइबिलिटीज हैं. ठीक है, सी अच्छा ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसा था. ऑर्डर ऑफ पेमेंट फर्स्ट किसको पे करना होता है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, after this secured creditors, then unsecured creditors, then partners loan, and last partners capital. Okay, then in this question liability side, is there any preferential creditors? Yes or no? Is there any income tax, government dues? है क्या कुछ ऐसा? No, No. है ना. हमारे पास लाइबिलिटीज में क्या क्या है. 3 पार्टनर्स हैं, रेड ब्लू एंड व्हाइट, क्रेडिटर्स एंड रेड्स लोन. ओके, क्रेडिटर्स एंड रेड्स लोन. तो मींस हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे. फर्स्ट कॉलम फॉर कैश, सेकंड कॉलम फॉर Total claim. हाँ टोटल क्लेम, देन नेक्स्ट कॉलम फॉर क्रेडिटर्स, देन रेड्स लोन, देन फिर 3 पार्टनर्स. मतलब कितने हो गए. पर्टिकुलर्स, कैश, total claim, 7. creditors, red's loan, and 3 partners. Total 8 columns. Okay, particulars, total cash. See, यहाँ पर एक और कॉलम ऐड होगा. Total claims. See, अगर आप कैश एंड ये मतलब इस कॉलम को भी कर सकते हो, टोटल क्लेम भी, बट हम लोग एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे. Okay. करेक्ट है. कैश, टोटल क्लेम्स, क्रेडिटर्स, रेड्स लोन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, 3 पार्टनर्स. ओके, इनका रेशियो भी लिख कर रखना है तो लिख कर रखते हैं. रेड का रेशियो है 5, व्हाइट का रेशियो है 3 एंड व्हाइट ब्लू का रेशियो है 2. ऊपर जाते हैं. सी 5:3:2. ओके, ठीक है. कैपिटल बैलेंसेस 50,000, 15,000, 45, क्रेडिटर्स 40,000 एंड रेड्स लोन 10,000. कैश कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो वो ब्लैंक जाएगा. कैश इज, देन ओपनिंग बैलेंस, कैश इज डैश, क्रेडिटर्स 40,000, ऊपर देखते हैं. क्रेडिटर्स 40,000, रेड्स लोन 10,000, रेड कैपिटल 50,000, व्हाइट का कैपिटल 15 एंड ब्लू 45. ओके, टोटल क्लेम हाउ मच? 40 plus 10 plus 50 plus 40, 15 plus 45 is equal to total is 1,60,000. Yeah. Okay. The next step is, अभी हमारे पास तो कैश है ही नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? रियलाइजेशन है ना. बैलेंस शीट में गिवन है रियलाइजेशन. सी आफ्टर बैलेंस शीट, सी फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन एंड थर्ड रियलाइजेशन. या थर्ड फर्स्ट रियलाइजेशन, देन हम फर्स्ट रियलाइजेशन का अमाउंट लेंगे 30,000. ओके, first realization is 30,000. ओके, ये 30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट पहले किसको जाएगा? यहाँ पर देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है नहीं, यहाँ पर क्रेडिटर्स है, तो पहले हम क्रेडिटर्स का ड्यूज कंप्लीट करेंगे, पे ऑफ कर देंगे. उसके बाद रेड्स लोन पे करेंगे, एंड देन आफ्टर दिस 3 पार्टनर्स. ओके, देन लेस paid to creditors. क्रेडिटर्स का देखो टोटल कितना है 40,000 एंड हमारे पास 30,000 है, तो ठीक है हम लोग 30,000 पूरा क्रेडिटर्स को दे देंगे. 30,000
ओके और यहाँ पर भी क्लेम में लिखेंगे 30,000 या 1,60,000 minus 30 how much 1,30,000. 1,30,000 and then here 40,000 minus 10,000 30,000 10,000 और ये as it is हम कॉपी पेस्ट करेंगे 10,000 50,000 15,000 and 45 okay then there is no cash available पूरा 30 का 30 हमने यूज कर लिया हो जाएगा then next is अभी देखो क्रेडिटर्स को कितना देना बाकी है 10,000 अभी हम क्या करेंगे हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है सेकेंड रियलाइजेशन का अमाउंट देन क्वेश्चन में जाएंगे सेकेंड रियलाइजेशन हाउ मच 73,000 ओके फर्स्ट अप्रैल सेकेंड रियलाइजेशन हाउ मच 73,000 ओके अभी देखो फर्स्ट हम लोगों को किसको पे करना है क्रेडिटर्स को कितना 10,000 तो आउट ऑफ 73,000 पहले हम क्रेडिटर्स का 10,000 पे ऑफ कर देंगे देन लेस पेड टू क्रेडिटर्स हाउ मच 10,000 क्योंकि उनका 10,000 बैलेंस रिमेनिंग था देन यो सेम 10,000 एंड टोटल क्लेम्स में भी ठीक है 10,000 ठीक है 73,000 माइनस 10,000 63,000 130 minus 10 1,20,000 20,000. okay here nil and then ये as it is नीचे आ जाएंगे see अभी किसकी बारी आती है रेड्स लोन की हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है yes then next step is less paid to रेड्स लोन हाउ मच कितना लोन है इसका 10,000 तो लेस 10,000 10,000 ये हो जाएगा 63 माइनस 10,000 हाउ मच कैश 53,000 ये 1,10,000 नील हो गया है ये भी नील हो जाएगा एंड देन इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे 50,000 15,000 एंड 45 ओके द नेक्स्ट स्टेप इज अब बारी आती है ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो हमने ये किया है एक्सेस कैपिटल पे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल से हमें क्या पता चला कि किस पार्टनर को पहले पे करना है एंड देन उसके बाद किसे एंड लास्ट में किसको देन फर्स्ट पे टू ब्लू कितना 25,000 ओके ब्लू को पे करना है पहले 25,000 हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 53 तो यहाँ पर लिखेंगे लेस पेड टू ब्लू हाउ मच 25,000. 25,000 ठीक है पेड टू ब्लू 25,000 में 25,000 एंड ब्लू के कॉलम में 25,000 माइनस करेंगे 53 माइनस 25 8,000 कैश अवेलेबल इज 28,000 1,10,000 minus 25 85,000 sorry 85,000 and here 45 minus 25 20,000 ओके एंड इन दोनों को एज इट इज हम नीचे लेकर आएंगे 50,000 and 15,000 देन नेक्स्ट किसको पे करना है सेकंड पे टू रेड एंड ब्लू 35,000 इन देयर PSR ओके इनका PSR कितना है 5:2 मतलब 35,000 को हम 5:2 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे the next step is less paid to red and blue okay how much 35,000 एक मिनट हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है 28,000 और पे कितना करना है 35,000 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पे कर सकते हैं 35,000
No. No, ma'am. तो हम लोग के पास सिर्फ कितना लिमिट है यहाँ पर 28,000 की, तो 28,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके PSR पे 5:2. ओके, तो 28,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 5:2. 28,000 divided by 7 into 5. 20,000. 20,000 मीन्स रेड के कॉलम में आ जाएगा 20,000. व्हाइट का अभी तो नहीं करना है. एंड देन ब्लू का कितना हो जाएगा 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. ठीक है, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा नील. ओके, यहाँ से भी 28,000 माइनस करेंगे. 85 minus 28, 57,000. 57,000. Then here 50 minus 20 is 30,000. 15,000. And here 12,000. 12,000. सी अभी हमारा थर्ड रियलाइजेशन का बारी आता है. थर्ड रियलाइजेशन इज 47,000. ओके, लेस सॉरी, थर्ड रियलाइजेशन इज 47,000. ओके, अब यहाँ हमें पे कितना करना था यहाँ पर पे टू रेड एंड ब्लू को 35, बट हमारे पास लिमिट कितनी रही 28 की. मतलब अभी उनको देना कितना बाकी है, आउट ऑफ 35 28,000 पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा 7,000. 7,000. तो पहले हम 7,000. रेड एंड ब्लू का जो 7,000 पेंडिंग था वो पे करेंगे, एंड देन उसके बाद तीनों पार्टनर्स को जाएगा. तो लेस पेड टू रेड एंड ब्लू कितना 5,000. समझा ना, ये 5,000 कहाँ से आया, उनको 35,000 पे करना था, बट हमारे पास लिमिट कितनी थी 28,000 की. तो हमने 28, अच्छा सॉरी हाँ, 28,000 की, हाँ 28,000 हमने पे कर दिया, तो 7,000 पेंडिंग था. तो पहले हम आउट ऑफ 47,000 7,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:2 के रेशियो पे रेड एंड ब्लू को. ओके, देन पे करो. रेड का कितना हो जाएगा 7,000 divided by 7. 5,000. 5,000 का 2,000. ओके, 47 minus 7 40,000. 40,000. Here 57 minus 7 50,000. 1,000. Okay, then here 30,000 minus 5,000 25,000. Here 15,000, and then 1 minute, sorry by mistake, 12,000 minus 2,000 10,000. टोटल करो 25 plus 15 plus 10 कितना है 50. 50. करेक्ट, 50,000. 50 है टोटल क्लेम. 50 मीन्स हमारा सम करेक्ट है. हमारे पास अमाउंट कितना है 40,000, मतलब हम सिर्फ 40,000 तक के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो लेस पेड टू ऑल, मतलब तीनों पार्टनर्स को देना है. पेड टू रेड व्हाइट एंड ब्लू, उनके PSR रेशियो पे अंडर ब्रैकेट PSR कितना 40,000 को 5:3:2 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करो. 40,000 okay, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट 5:3:2. 20,000. तो फर्स्ट का कितना 20,000. 20,000. ओके, 20,000. नेक्स्ट 12,000. 12,000. 1,000 and last 8,000. 8,000. Okay, then okay, then ये तो हो जाएगा नील. 50,000 minus 40,000 10,000. 25 minus 20 5,000. 15,000 minus 12,000
3,000 3,000 1,000 minus 2,000 8,000. अब अनपेड ड्यूज कितना आ गया, या बैलेंस अनपेड, कुछ भी लिख इधर आप अनपेड ड्यूज लिख सकते हैं या फिर बैलेंस अनपेड. बैलेंस अनपेड 10,000, यहाँ पे ऐड करो 5,000 प्लस 3 प्लस 2 10,000. मतलब टोटल क्लेम अभी भी अगर हमारे पास 10,000 होता तो हमारे ड्यूज पूरे पे हो जाते, मतलब ये एज इट इज रह जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. Okay.